We have started to at Enter India. We have started to do this series to bring the experts in the domain to connect with the companies, maybe startups, entrepreneurs, or those who want to expand. So let me give you a brief about myself and about the company. My name is Naveen Pathak, and I'm the Chief Operating Officer at Enter India. I'm based out of US. So right now I'm in New Jersey, US. The time here is 5:30 a.m. in the morning. The purpose of Enter India, the goal of Enter India, is to connect the companies in India and in US or around the world, in fact, do business with each other. We are not e-commerce. So the idea is that there are companies which want to introduce their products in the Indian market. And then there are Indian companies who wants to introduce their product in the foreign markets. So Enter India gives you a platform where companies can talk about their products, their services, and what are they looking for in a foreign country, wherever. So the projects can be in the form of that I am a distributor, or I am a manufacturer of let's say medical devices, and I'm looking for a distributor, or recently we are working on a medical device project in which there is a product, an oxygen mask respirator created by an American company from Arizona, and they want to get it manufactured in India and distribute in India. So these are the kind of projects that we do at Enter India. Today in the talk, because currently we know that with the COVID situation, what's happening. So the best way to begin this series is to bring an expert in the medical devices area. There is a huge demand and huge scope. Demand, of course, we all know. The scope is that so many companies outside of India are looking for India as a market right now. And there is a company out of Germany, for example. They have devised a fabric, and that fabric, in fact, it works as a medical device. So they want to enter India. Many companies around the world are looking India as the market. So the goal purpose of this particular webinar is to introduce the companies in India to medical device if they're not already in there. So we have an expert, Mr. Vipin Singh Parihar, who we have invited to talk about how one can expand or how one can do business in the distribution or trading of medical devices. Since I'm not an expert in medical devices, of course, but since this is a vast area, vast field, um, we will divide this series into multiple parts in medical devices. But let me give you a 30-second synopsis of Vipin Singh Parihar, then I'll hand over the mic to him, and he will begin with his discussion, his talk. Mr. Parihar is a Bachelor of Pharmacy. He's a postgraduate diploma holder in international business, and also he has export import management degree from IIFT. He has worked with various multinational organizations, include Vigan from France, B. Braun from Germany, Fresenius from Fresenius Kabi, and he runs his own business also, and a very accomplished person in import and export and wholesale distribution of medical devices. So here, without going any further, I'm going to invite Mr. Vipin Singh Parihar. Vipin ji, you're welcome to the show. Yes, sir. Thank you. Now Thank you, the sir. mic is Thank you. all Thank yours, you very much. floor is all yours. तो आप जैसा भी कहें बिल्कुल, आप इसे लीड करेंगे, हम आपको सुनेंगे बिल्कुल, और we will learn from you and see what we can do. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू नवीन सर. थैंक यू. विपिन सो जी आपकी आवाज थोड़ी ऊंची कर लेना. आवाज फुल है. अभी आ रही सर आवाज? अब बार प्रॉपर है? यस यस ठीक है विपिन जी, यू कैन कैरी. ठीक है. ओके. ओके, तो नवीन सर ने मेरा परिचय बहुत अच्छा ही दे दिया है ना. तो सो वी स्टार्ट विद द मेडिकल डिवाइसेस इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली ये होता क्या है ना. मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में वो डिवाइसेस होते हैं जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ थेरेपी देते हैं. मीन्स दिस इज नॉट अ मेडिसिन. ये आपको मेडिसिन देने के लिए या कोई डायग्नोसिस करने के लिए या किसी तरह के प्रिवेंटिव केयर्स लेने के लिए ये डिवाइसेस का यूज किया जाता है. तो अब ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes. हाँ. सो अब ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन. मेडिकल डिवाइसेस एक्चुअली होते क्या है. अब यूएस एफडीए और इंडिया में जो सीडीएससीओ है,
ये इनको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं कि एक्चुअली ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मीन्स ये होता है कि इनके क्लासेस इसलिए बनाए गए हैं, इससे हमें पता चले कि ये कितना ह्यूमन के लिए रिस्की हो सकते हैं, मतलब रिस्क के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये भी 2 तरह के हैं, जैसे कि अपना एक एक्टिव डिवाइसेस होते हैं, एक नॉन एक्टिव डिवाइसेस होते हैं। तो एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस मीन्स वो डिवाइसेस हैं जिसमें जिसको रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है या किसी तरह के मैकेनिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉन एक्टिव डिवाइसेस जो होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रिसिटी या किसी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जो एक्टिव डिवाइसेस हैं उनके एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन मशीन है, स्कैनर्स है, एमआरआई मशीन है, ये सब एक्टिव डिवाइसेस हैं। और नॉन एक्टिव डिवाइसेस में सारे इम्प्लांट डिवाइसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, है ना, या कोई भी और भी कन्वेंशनल डिवाइसेस हो सकते हैं। अब इंडिया में स्कोप क्या है, जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि क्या स्कोप है, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में 1991 से आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड ऑल द थिंग्स, है ना, आप लोगों को मालूम है, तो इंडिया में तब से लेके अभी तक करीब 56% का इंपोर्ट है। और 56% के एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में इंपोर्ट में जो हो रहा है, इसमें से जो मेजर जो प्लेयर है वो यूएस है, उसके बाद यूरोप है। दोनों का 17% का शेयर है इंडिया में, मीन्स ऑलमोस्ट 34% तो इन दोनों के पास ही है, जो यहाँ इंडिया में कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। उसके बाद थोड़ा परसेंट जो है वो जर्मन ये सॉरी जापान के पास है, थोड़ा सिंगापुर के पास है 7% का। तो ऑलमोस्ट 56% का इम्पोर्ट हो रहा है ऑलरेडी, है ना। अब इतना बड़ा मार्केट है कि आप इसको समझिए कि जब इतना इम्पोर्ट हो रहा है तो ऑलरेडी समझ लीजिए कि बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेट्रॉनिक है। मेट्रॉनिक यूएस कंपनी है और इंडिया में बहुत अच्छा लीड कर रही है। तो ये और उसके और भी है बहुत सारी कंपनी, स्ट्राइकर है, एडवर्ड है, हडसन है, टेलीफ्लेक्स है, ये बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, है ना, सक्सेसफुली कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि भाई अब मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में जो भी जैसे डिवीजन तो हमने बता दिया कि 3 क्लासेस होते हैं। अब हम सोचते हैं कि भाई अब 3 क्लासेस में से हमें क्या चूज करना चाहिए, अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस इंडिया में करना चाहते हैं तो हमें कौन से प्रोडक्ट को चूज करने चाहिए, या किस डिवीजन क्लास 1 से लेके क्लास 3 के बीच में कौन से प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए। तो इसमें तीनों ही जो सेगमेंट है वो ही, मतलब तीनों में बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसके थ्रू हम देखते हैं, तो एक जनरल कैटेगरी के होते हैं जिसमें जनरल गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस नहीं करती, ज़्यादा लाइसेंसिंग या ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से उस पर लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन जो दूसरे वाले जो क्लास बी और मतलब क्लास 2 और क्लास 3 डिवाइसेस हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कंट्रोल एक बॉडी है, जैसे सीडीएसयू है इंडिया में, डीजीसीआई है, ये कंट्रोल फोकस करती हैं। और कंट्रोल फोकस क्यों करती हैं कि इनकी मिस ब्रांडिंग ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, और इनका जो है एक तरह से आप समझिए कि मतलब मिसयूज ना होने पाए यहाँ पे इंडिया में। तो अब इसके लिए जो लाइसेंसिंग है इंडिया में, तो क्लास 2 और क्लास 3 के लिए जो अपने यहाँ इंडिया में चलता है, ये सेंट्रल के थ्रू होती है, सेंट्रल डिपार्टमेंट, मतलब जैसे डीजीसीआई है और सीडीएसयू है। लेकिन क्लास ए और क्लास बी ये डिवाइसेस अपना लोकल स्टेट, जहाँ भी आप इंडिया में जैसे कि स्टे कर रहे हैं या जहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो आपको क्लास ए और क्लास बी के लिए लोकल अथॉरिटी जो एफडीए है, जैसे सपोज मैं एमपी में हूँ तो यहाँ पे एमपी एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अब जैसे कार्डियक स्टंट है या आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व है या आर्टिफिशियल हार्ट है, अब इस इन चीज़ों की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन अब जैसे क्रैब बैंडेज है, पेपर टेप है, या नॉर्मल एक जनरल जो डिवाइसेस हैं, उनकी ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं अपने स्टेट में या अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको इतना ज़्यादा लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्ट्रिक्ट उसके लिए रूल्स नहीं हैं अपने यहाँ पर इंडिया में। फिर इसके बाद हम जैसे आते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती ही क्यों है।
आखिर क्यों रिक्वायरमेंट है ड्रग लाइसेंस की? वो इसलिए होता है कि एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले ब्लड बैग लॉन्च हुआ था इंडिया में, ब्लड कलेक्शन बैग, और उसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाए थे। तो जो, क्योंकि अब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1943 में आ चुका था इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स अपने यहाँ इंडिया में थे, तो उसमें ब्लड बैग जैसी कोई कलेक्शन का जो डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस, वो था ही नहीं, तो उसके लिए कोई रूल नहीं था। अब उसके बाद वो इंडिया में जब ब्लड बैग लॉन्च हुआ, टेर्मो करके जापान की कंपनी है, उसने ब्लड बैग इंडिया में लॉन्च किया। अब लोगों ने क्या किया कि अब उसको गलत तरीके से यूज करने लगे, मतलब जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद लोगों का जो ब्लड है वो निकाल के किसी को बेच देना, है ना, मिस यूज करना, या उसको एडल्ट्रेशन करना। तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, इससे लोग HIV पॉजिटिव हो रहे हैं, इससे लोग ऑस्ट्रेलियन एंटीजन और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों को इंडिया में पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें ड्रग लाइसेंस इसके लिए रखना जरूरी है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ड्रग लाइसेंस क्यों जरूरी होता है। और इसी तरह दूसरे डिवाइसेस में भी होता है ना, इंडिया में। अब लोग सोचते हैं कि भाई अब चलो, अब ड्रग लाइसेंस के लिए हमें क्या चाहिए, या हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? तो बेसिक चीज़ है कि आप या तो कॉम्पिटेंट पर्सन हो, या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, है ना, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी मोस्ट ऑफ स्टेट में लाइसेंसिंग के लिए दिया जाता है कि जो बी फार्मा हो। और तीसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए चलिए आपके पास दोनों नहीं है, तो किसी कंपनी के साथ आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में हो। ये 3 क्राइटेरिया रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको लाइसेंस ट्रेडिंग के लिए इंडिया में दे देती है। क्लास 1 और बी के लिए तो मीन्स क्लास ए और बी के लिए तो इतनी जरूरत नहीं होती लाइसेंसिंग की, लेकिन सी और डी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। अब जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें कि हम इंडिया में बिजनेस तो करना चाहते हैं मेडिकल डिवाइसेस का, लेकिन किस सेगमेंट को हमें चूज करना चाहिए? तो जो मोस्ट इमर्जिंग जो या जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो है प्रोस्थेटिक डिवाइसेस का। प्रोस्थेटिक डिवाइसेस मीन्स वो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कोई हैंडीकैप हो गया, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो लेग्स आजकल या हैंड जो है वो डेवलप किए गए हैं, है ना, थ्रू द सिलिकॉन मटेरियल, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, दोनों के थ्रू आजकल बन रहे हैं। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट है और मेन है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में सीटी स्कैन, स्कैनर और अपना एक्सरे जो मशीन्स हैं, उस पर बहुत सारे वेरियस रेंज है उसमें। तो ये 3-4 सेगमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ इमर्जिंग है इंडिया में, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। फिर जो अभी जो रिसेंटली आप क्राइसिस में देख रहे हैं, अभी कोरोना पैंडेमिक में देख ही रहे हैं कि लोगों ने इंडिया में जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, या जो हैंड हाइजीन है उसके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी इन्फेक्शन कंट्रोल जो है न सिर्फ इंडिया के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। और उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है जिसमें वो लोग, अब होता क्या है कि इन्फेक्शन कंट्रोल पहले तो सिर्फ हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट थे वहीं होता था, लेकिन आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिवाइसेस का यूज़ होगा अभी फिलहाल, आज जो एक नया ट्रेंड आया है, वो होगा डिस्पोजेबल का। डिस्पोजेबल मीन्स सिंगल यूज डिवाइसेस। सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस में क्या होता है कि उसको एक ही बार यूज़ किया जाता है, रीयूज़ नहीं किया जाता। और रीयूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जब आप रीयूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। तो सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस में बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही थी, और अभी करीब 128 कंपनियां इंडिया में जो सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं, जिसमें जो मेजर जो स्टेट है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है गुजरात। गुजरात में 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, उसके अलावा दिल्ली में है कुछ, और उसके बाद मुंबई में। ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है ना, वहाँ R&D फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो किसी और अपन टॉपिक में कभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें से उसके अलावा जो 56% कंपनीज हैं जो US और यूरोप की कंपनीज हैं इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जिनको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई इंडिया में स्टार्ट करने का, जो आने वाली है। जैसे नीदरलैंड की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में आने वाली हैं,
उसके बाद इसराइल की कंपनीज है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें R&D में इन्वेस्टमेंट कर रही है, यूके की बहुत सारी कंपनीज जो अभी आने वाली है। तो आप समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही मेन जो है हर कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर हैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है बिजनेस के लिए। अब हम समझते हैं कि हमें किस तरह के जो जो जैसे कि अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि आखिर जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ क्यों होते हैं या इसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप समझिए कि कोई भी जो डिसीज़ है वो ह्यूमन बीइंग को सिर्फ 3 फैक्टर से लगती है। एक, जो कोई इन्फेक्शन वाला एजेंट है वो बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। उसके थ्रू आदमी मतलब डिसीज उसको लग जाती है, तो या तो वो एक्यूट केयर हॉस्पिटल जाता है, या तो पॉली क्लिनिक जाता है, और या तो डे केयर सेंटर जाता है जहाँ वो नाइट स्टे नहीं करता और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेके घर जाता है। दूसरा होता है, एक ऐसी डिसीज होती है ह्यूमन बींग को जो किसी तरह की क्रोनिक डिसीज होती है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक वो बीमारी से रहा हो, जैसे सपोज डायबिटीज के कारण या उसकी रीनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम रही, तो उस तरह का पेशेंट जो होता है क्रोनिक डिसीज वाला, वो हॉस्पिटल में स्टे भी करता है और इन पेशेंट बन के लंबे समय तक स्टे करता है। तो अपने, और तीसरा जो होता है किसी तरह का सिस्टम बॉडी के अंदर कोलैप्स कर जाए। कोलैप्स करने का मतलब होता है जैसे आपका अचानक से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए, या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, इस तरह की चीज उसको हो जाए। तो इस तरह के जो कोलैप्स होते हैं सिस्टम, बॉडी के सिस्टम, उस समय सबसे ज्यादा डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल में। अब ये इस तरह के अपने को बॉडी के सिस्टम तो पता ही है कि 8-9 सिस्टम होते हैं, वही कोलैप्स होते हैं और उन्हीं में डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। तो जो पहला वाला जो था जिसके इन्फेक्शन के थ्रू जो डिसीज होती है, उसमें सिर्फ मेडिसिन का ज्यादा यूज होता है, डिवाइसेस का यूज नहीं होता। लेकिन दूसरा वाला जो 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 क्रोनिक पेशेंट है और जो अपना ये जिसका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है मेडिकल पेशेंट का, तो वही दो चीजों में अपने डिवाइसेस यूज होते हैं। अब ये डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं, तो वो ये कितनी कैटेगरी के होते हैं, तो ये बेसिकली जो होते हैं 4 से 5 कैटेगरी के होते हैं डिवाइसेस। जैसे अपना एनआईसीयू में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में जो यूज होते हैं। दूसरा अपना जो इंटेंसिव केयर यूनिट जो एडल्ट वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए होते हैं। और अपना डायलिसिस में जिनका किडनी काम नहीं करती या जिनका जो रीनल फंक्शन है वो काम नहीं करता, तो उसके लिए डिवाइसेस होते हैं। और जितनी भी ये डिवाइस हैं, सारे डिवाइसेस को लगाने के लिए एक ऑपरेटिंग रूम होता है या ऑपरेशन थिएटर होता है, जहाँ पर ये सारे के सारे डिवाइसेस को बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है या सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको रिहैब करते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई अब कितने तरह के डिवाइसेस होते हैं, इसमें बहुत बड़ा रेंज है, तो वो अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आप को पूरी रेंज बता सकूं, क्योंकि करीब करीब जो यूएसएफडीए है उसने बोला कि 1700 जेनरिक डिवाइसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, आज यूएसएफडीए के साथ रजिस्टर्ड हैं। और सेम डिवाइसेस इंडिया में सीडीएससीओ के साथ रजिस्टर्ड है। जो नहीं है वो इम्पोर्ट हो जाते हैं इंडिया में, है ना, उसका कोई इशू नहीं रहता। अब 1700 जेनरिक डिवाइसेस का मीन्स ये होता है कि आप उसके सबके वेरिएशन अगर आप देखोगे तो 10,000 हैं पूरी कैटेगरी में। तो उस कैटेगरी को आप अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट का डिवीजन हो गया, डायग्नोस्टिक का डिवीजन हो गया, उसके बाद डिस्पोजेबल जो मेन हम लोग आज बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल का, है ना, वो वाला डिवीजन हो गया। उसके बाद इन विट्रो डायग्नोस्टिक और इन विवो डायग्नोस्टिक, ये दोनों अलग अलग सेगमेंट होते हैं। और उसके बाद मेडिसिन वाला रहता है हिस्सा, है ना। तो मेन हम जो बात कर रहे हैं वो सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस पे। और सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि जैसे इक्विपमेंट एक कैपिटल इक्विपमेंट है, आप एक बार अगर सप्लाई कर देते हो हॉस्पिटल में, तो उसके बाद आपका स्कोप जो है लंबे समय तक के लिए उस हॉस्पिटल से ख़त्म हो जाता है। लेकिन सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस आप रेगुलरली हॉस्पिटल में देते रहते हैं और उसकी रोज आपको रिक्वायरमेंट आती है। तो सबसे बेस्ट जो इमर्जिंग है और प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस में है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने अभी डिस्कस कर ली। फिर बाकी आप क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसमें आप पूछ सकते हो कि अब बाकी हमें मतलब आपका जो क्वेरी रहेगा उसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, है ना। अब होता है कि जैसे आप मान लो ट्रेडिंग करना चाहते हो या मान लो स्टार्ट कर चुके हो, तो
एक जनरल सा एक सवाल आता है कि सर हम करें कहाँ इसकी जो बिजनेस ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसकी देखो एंडलेस जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, छोटे नर्सिंग होम से लेके एक प्राइवेट क्लिनिक तक इसको सप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ा एरिया होता है। लेकिन जो क्रिटिकल केयर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक सेगमेंट है जो हर जगह होता है। मतलब गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी और कॉर्पोरेट में सब जगह होता है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये जो सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस में जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है। अब उसका तुरंत बर्थ होने के बाद उसको एक आईसीयू में रखा जाता है, जिसको अपन स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट या एसएनसीयू बोलते हैं। वहाँ रखा जाता है। तो उसके जो आई मास्क है, मतलब आंखों के ऊपर एक फोटोथेरेपी प्रोटेक्शन मास्क लगाया जाता है। वो इसलिए कि जो कि यूवी लाइट का जो इफेक्ट है वो पेशेंट के आंखों, मतलब जो बेबी के आंखों को है वो डैमेज नहीं कर सके, है ना। दूसरा एक जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, है ना। अब न्यू बॉर्न बेबी भी सपोज करिए कि अगर वो अंडर वेट है, मतलब उसका वेट 700 टू 800 ग्राम है, तो उसको जो मेडिकेशन देना है तो वो आप किसी रूट से उसको नहीं दे सकते। ना तो आप उसको आईवी कैनुलेशन कर सकते हैं, ना आप उसको ओरल रूट से दे सकते हैं, ना वो मदर को फीड करा सकते हैं। तो फिर ऐसी ऐसी कंडीशन में एक पीआईसीसी लाइन होती है जो उसके वेसिकल वेन से उसको इंसर्ट की जाती है और सीधे हार्ट तक वो पहुंचती है। और वो उसको वेट गेन कराने के लिए ये पीआईसीसी डिवाइस इंस्टॉल की, मतलब उसकी बॉडी में इम्प्लांट की जाती है, जिससे वो 20 दिन 25 दिन तक एक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन होता है। टीपीएन जो है उसकी बॉडी में जाता रहे एक लंबे समय तक और वेट गेन कर ले वो। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये ऐसे, ये तो एनआईसीयू का हो गया। ऐसे पीआईसीयू होते हैं, पीआईसीयू में जहाँ 5 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं उनको वहाँ एडमिट किया जाता है। अगर उनको कोई डिसीज हो जाती है तो उनके लिए भी जैसे सेंट्रल वीनस कैथेटर्स हैं, इंट्यूबेशन डिवाइसेस हैं, ये सब उनको लगाए जाते हैं। सेम ऐसे ऑपरेशन थिएटर में आप किसी भी तरह की सर्जरी है, अब सर्जरी तो बहुत टाइप की होती है। आई से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, गैस्ट्रो सर्जरी है, आपके एंडोस्कोपिक सर्जरी है। तो सारी सर्जरी के जो डिवाइसेस होते हैं वो भी वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये है। अब इनकी जो हम बोलते हैं कि अगर हमको चलो इतने सारे डिवाइसेस हो गए, इतने सारे सेगमेंट हो गए, तो हम इसमें प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट आप समझिए कि 30 से 50% प्रॉफिट जाता है। कि आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एंड ऑफ द मंथ में। Hello, Bipin जी ji. जी सर। जी जी जी। Yeah. So before you move into the other parts like the operational part, the profit and यस other यस parts, I got few very basic questions. जी 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 सर Examine बोलिए। one that in order to, since we are talking on healthcare devices, medical equipments, and devices and tools. यस सर। यस सर। So I would like to understand whether it's necessary. I mean, what kind of people can start it? Is there any sort of medical license, degree, or experience knowledge that is required as a precondition, or anybody can start? देखिए सर, इसमें जो क्लास ए है और क्लास बी के डिवाइसेस हैं वो तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ना तो उसके लिए बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन जब हम क्लास सी और डी की बात करते हैं उसके लिए लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है। और जो पर्सन है जो इसको ऑपरेट करेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, वो ऑनर भी हो सकता है, प्रोप्राइटर भी हो सकता है। वो इसको, उसके लिए इसको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट, लाइसेंस भी और उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी। लेकिन क्लास और क्लास बी के लिए, मीन्स पार्ट ए और पार्ट बी, जो क्लास ए और क्लास बी के लिए, उसके लिए कोई ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइसेंसिंग के लिए इंडिया में। Okay. जी। Okay. And where, I mean, if suppose I want to check whether are these classes are mentioned, is there any source for that? यस सर, एक गवर्नमेंट की अपनी एक Where साइट I है can go and जिसे, check what are the classes? Am I easily? जी जी, Yeah. आप यूएस एफडीए की जो वेबसाइट है उसमें भी जाके क्लासेस को चेक कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, इंडिया में अगर चेक करना चाहते हैं तो
CDSCO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है ना। और CDSCO ने रीजनल जो है 7 ऑफिस बनाए हैं, जिसमें से एक इंदौर में है और चेन्नई में है, बहुत सारी जगह है इंडिया में। 7 जगह और हैं इसके रीजनल ऑफिस है CDSCO के। वो इसलिए हैं कि सपोज करिए कि हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए दिल्ली जाके अपना, है ना, क्योंकि CDSCO मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी देती है और स्पेशल जो लाइसेंसेस होते हैं वो भी देती है। तो इस 7 रीजनल ऑफिस बनाए गए, तो आप CDSCO में जाके चेक कर सकते हैं कि इसकी जो क्लासेस हैं, है ना, मेडिकल डिवाइसेस क्लासेस क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से आपके जो, जैसे MDR 2017 है, तो मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 में बताया गया है कि कौन सी चीज़ों के लिए ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ों के लिए नहीं है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, तो सपोज करिए अब हम डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस की अगर बात कर रहे हैं, तो फॉर्म 24 जो है वो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है, फॉर्म 24। तो ये अच्छा, इसलिए है कि मैन्युफैक्चरिंग का हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का और उसमें मैन्युफैक्चरिंग। दोनों है। हाँ, दोनों दोनों चीजें उसमें CDSCO में आपको मिलेंगी, और ट्रेडिंग भी और मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी दोनों। ठीक सर। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? ओके, ओके, थैंक यू सर। मैं लीजिए। विपिन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यस 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 ये जो प्लीज। इंडिया में, जी हेलो, जी, हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, मैं आपको ओके, सुन पा रहा हूँ। बोलिए इंडिया बोलिए। में जैसे कि अगर मेरे को ये बिजनेस शुरू करना है, तो हाँ, जो जो कंपनी फॉर्मेशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सूटेबल है अगर मेरे को मेडिकल डिवाइसेस की ट्रेडिंग में जाना है? ट्रेडिंग के लिए जो प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। वो इसलिए होता है कि सपोज करिए आप प्रोप्राइटर हैं और आप उसको अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, तो प्रोप्राइटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अगर मान लीजिए इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अब उसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि प्रोप्राइटर के तो आपको पता ही है कि वो एक पर्सन होता है जो कि उस चीज़ को ऑपरेट करता है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, स्केल अप कर सकता है। दूसरा चीज, जब हम लोन लेने के लिए जब फाइनेंशियल हमको जरूरत होती है, तो अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मेरा जो सिविल स्कोर है वो बैंक जो है उस मेरी साख को हमेशा देखता है। और अगर सिविल स्कोर मेरा थोड़ा सा डाउन होता है तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी बैंकिंग सेक्टर से नहीं मिल पाता। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आपकी उसका खुद का एक पैन कार्ड होता है कंपनी का, और वो कंपनी का खुद अपना एक पहचान होती है, एक साख होती है बैंक के अंदर। तो उससे आपको लोन लेने में अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर तीसरा चीज ये है बेनिफिट कि अगर आपको ब्रांचेस बनाने हैं, ब्रांचेस मीन्स पूरे इंडिया में हर स्टेट में बनाने हैं ब्रांचेस, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, तो काफी इजी हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेडिंग सेगमेंट में अगर मेडिकल डिवाइसेस में आना है लोगों को, तो वो प्राइवेट लिमिटेड एक एंटिटी के साथ करें तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये जो जी एज एन एंटरप्रेन्योर, जी मैं अगर इंडिया में हूँ या इंडिया के अंदर मैं ऑलरेडी इस बिजनेस में एग्जिस्ट करता हूँ, जो जी बाहर जी। की कंपनीज इंडिया आती हैं और हाँ प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं, जी। मैं उनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ? देखिए उस उनके साथ काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि सर आप, जैसे कि सपोज करिए कोई नीदरलैंड की कंपनी है, उसको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो कंपनी इंडिया में अपना कोई ऐसा सच जैसे HR डिपार्टमेंट है या फाइनेंस किसी भी तरह के स्ट्रक्चर बना के ऑफिस बना के काम नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी कंपनी है सपोज करिए डॉल्फिन प्राइवेट लिमिटेड, वो ऑलरेडी यहाँ पे मुंबई में या इंदौर में काम कर रही है, तो हम उसके साथ मिल के कोलैबोरेशन करके हम बोल सकते हैं कि सर एक काम करिए, ना मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे यहाँ इंडिया में, ना आप करिए, आप हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जितना हम ऑर्डर्स हैं, मेरे ऑर्डर्स हैं, है ना, डिवाइसेस के, वो उतने सिर्फ आप बना के, जो ब्रांड मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना, जैसे जेब्रा गाइडवायर के नाम से मेरी डिवाइस है,
आप वो नीदरलैंड में बनाइए और वहां से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आपसे। तो ये एक 5 साल का एक ऑथराइजेशन उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि 5 इयर्स के लिए इंडिया में इस ब्रांड के साथ मेरे अलावा और वो प्रोडक्ट किसी और को नहीं मिलेगा। एक ये पहला तरीका है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। दूसरा तरीका है लोन लाइसेंसिंग। अब जैसे नीदरलैंड में जो आप बना रहे हैं, अगर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी अच्छी खासी है इंडिया में, तो मैं सारा का सारा सेटअप, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका स्किल, आपके पावर, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपसे इंडिया में एज अ लोन लाइसेंसी लेकर उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। और तीसरा एक तरीका होता है कि अब इतना बजट नहीं है अगर मेरे पास कि हम मैं लोन लाइसेंस टेक्नोलॉजी आपसे मैं एक लोन पे ले सकूं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा सकूं, तो बीइंग एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, आपकी कंपनी का मैं इंडिया का पहला रिप्रेजेंटेटिव बन के उसको यहाँ आगे वो कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं, प्रमोट कर सकता हूँ, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरा 2 करोड़ 5 करोड़ का टर्नओवर मंथली होने लगा है, तो उसके बाद की चीजें आप इसको आगे स्टेप में ले जा सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। तो जैसे जो 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 मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री है, इन कंपेरिजन इंडिया के अंदर कितने ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं हाँ मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, जो जी। इंडिया की मार्केट को तो केटर करते ही हैं, बट फॉरेन मार्केट को भी केटर करते हैं, जिनकी डिमांड बहुत अच्छी है? जैसे एक पॉली मेडिक्योर लिमिटेड है, ये दिल्ली के पास जो एनसीआर में बल्लभगढ़ एरिया है, वहाँ पर इनकी फैक्ट्री है और उनके 2-3 प्लांट है वहाँ पर। तो ये वहाँ से क्या करते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि सपोज करिए कि सऊदी में एक कोई कंपनी है या कोई इंपोर्टर है ना, एलएलसी फॉर्म में है, तो वो इनको बोलता है कि सर आप हमको ब्रांड मेरे नाम से बना के दे दो। तो एक ही कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे करीब 40 से 50 मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे सर्जीवियर है, उसके बाद रॉमसन है आगरा में, है ना, उसके बाद अहमदाबाद में काफी सारी कंपनीज है। तो ये क्या करते हैं कि अपना ब्रांड वहाँ प्रमोट नहीं करते, वही मैंने आपको बताया, ये अपना ब्रांड वहाँ सेल नहीं करते इम्पोर्टर को, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ अरेबिक चलती है, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती है ना। तो उनकी लैंग्वेज में, उनके ब्रांड में वो यहाँ से पूरा प्रिंट करके मैन्युफैक्चर करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वहाँ का इंपोर्टर जो है उसको परचेज करता है और अपने लोकल जो सऊदी एरिया है ना, जैसे जेदा है, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, तो वहाँ पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से कंपनियां यहाँ पे करती हैं इंडिया में। यहाँ का डायरेक्ट ऑपरेशन अगर देखेंगे कि यहाँ से जैसे कि आप यूएस की कोई जगह में इंडियन कोई जैसे पॉली मेडिक्योर लिमिटेड है, वो यहाँ से जाके वहाँ अपना ऑफिस बनाए और वहाँ बिजनेस करे, ऐसी बहुत कम कंपनियां इंडिया में, क्योंकि वो ओवरऑल जो कॉस्ट जाती है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाती है। तो बेस्ट रहता है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी दिल्ली में है, हम यहाँ से पूरा मैन्युफैक्चर करके, क्योंकि लॉजिस्टिक चार्जेस पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आज से करीब 15 साल पहले, लेकिन जब अब आजकल फ्रेट चार्जेस, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन तीनों बहुत ईजी हो गए और बहुत सस्ता हो गया। तो इसलिए अभी ज़्यादा बेस्ट तरीका यही होता है कि, है ना, कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया। ओके, वंडरफुल। विपिन जी, आई गॉट वन स्मॉल डाउट। जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग इन मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ केयर टूल्स, जी जी। so normally who is the customer? It's always the hospital, or one can simply trade to the to the public at large? How मैं exactly, who are the समझ गया। customers हाँ, primarily? देखिए इसमें जो है बेसिकली 3 तरह के कस्टमर होते हैं सर, है ना। एक होता है इन्फ्लुएंसर, दूसरा होता है एंड यूजर कस्टमर, है ना। तो इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? ये आपके हॉस्पिटल वाले हो सकते हैं, नर्सिंग होम हो सकता है, आपके डॉक्टर हो सकते हैं। ये सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये यूज नहीं करते कोई भी प्रोडक्ट अपने ऊपर, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है एंड यूजर कस्टमर। एंड यूजर कस्टमर मतलब जो पेशेंट हो सकता है, वो खुद एक डॉक्टर हो सकता है, एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए वो चीजें ले रहा है, ना वो बीमार है ना वो पेशेंट है। तो ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। अब वहां तक जो पहुंचने का तरीका है वो ऐसा होता है कि सपोज करिए कि मुझे एक ब्रांडेड नी कैप जो है ना, नी सपोर्ट के लिए सप्लाई करना है, तो वो मैं ई कॉमर्स के थ्रू भी जा सकता हूँ, ऑनलाइन सप्लाई के थ्रू। मैं एज अ रिटेलर को मेडिकल स्टोर को उसके घर के या कॉलोनी के पास उसको दे सकता हूँ, वहां से वो ले सकता है। तो बेसिकली 2 ही होते हैं जो सेगमेंट है,
इन्फ्लुएंसर और ये। अब इसके अकॉर्डिंग जो होता है कि सेगमेंट बढ़ते जाते हैं। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। अब तीनों में जो है इन्फ्लुएंसर, डिसीजन मेकर और जो प्रोसेस है पूरी सप्लाई की वो अलग अलग होती है। ओके, हाँ ऑफ जी कोर्स, जी जी। ओके। तो Yeah, हाँ, आप कुछ बात आप कुछ बात कर रहे थे yeah. I also अबाउट। have a question. Yes. Yeah, सर। Vipin ji, tell me something. आपने इनिशियली बताया इंडिया में 56% इम्पोर्ट है जी रफली। जी। हाँ हाँ। इन वैल्यू टर्म्स कितना होगा ये? ये वैल्यू के हिसाब If से you have to अपन देखेंगे quantify, तो what would be the figure? वैल्यू वाइज करीब $3 बिलियन का इंपोर्ट होता है 3 वैल्यू वाइज। billion. हाँ 3 बिलियन, और ये 2025 तक ये करीब करीब 15 से $20 बिलियन तक बिजनेस पहुंच जाएगा इंडिया में। मतलब are you trying to say जो 15-20 बिलियन होगा, ये जी। जो इंक्रीज है ये इंपोर्ट इंक्रीज होगा, नॉट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये टोटल मार्केट में बता रहा हूँ, मैं इंपोर्ट का नहीं बता रहा हूँ। जैसे आप एक सपोज करिए कि इंडिया में अभी PLI स्कीम आई है ना, जिसमें 4 इंडिया में अपने मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनने वाले हैं। अभी ये करीब 1 हफ्ते पहले की खबर है। इसमें 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोवाइड कर रही है ना, ये मेडिकल पार्क बनाने के लिए, स्पेशली मेडिकल डिवाइसेस के लिए। और ये बना रही है इस 4 से 5 सेगमेंट के लिए। जैसे इंडिया में आपको मालूम है कि डायबिटीज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, कार्डियोलॉजी के जो डिवाइसेस आते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। उसके बाद कैंसर के जो ट्रीटमेंट है और किडनी का जो जैसे रीनल इम्प्लांट है या किडनी से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ये 4 सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट का फोकस है कि इससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक के प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट और जो थेरेपी के जो डिवाइस है ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो मैं टोटल इंडिया का बिजनेस बता रहा हूँ कि $20 बिलियन जो पहुंचेगा वो इंक्लूडिंग सारी चीजों को मिला के पहुंचेगा। इसमें इंपोर्ट कम होगा या ज्यादा होगा इसके लिए नहीं कहा जा सकता कुछ अभी भी, कितनी, लेकिन अभी what is the फिलहाल percentage of, what is the percentage of import now? 3 अभी बिलियन करीब डॉलर वही की मार्केट में क्या परसेंटेज इंपोर्ट है? देखिए इंडिया में अभी $3 बिलियन का इंपोर्ट होता है ना मेनली। और आने वाले टाइम में वो बढ़ भी सकता है। और अगर मेक इन इंडिया ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो इंडिया अभी इनिशिएटिव लिया गया है, तो उसके थ्रू ये हो सकता है कम भी हो जाए, मेक इन इंडिया अच्छा, ऊपर आ सकता है। ये जो हाँ, इंपोर्ट है ये OGL है या इसको इंपोर्ट ड्यूटी है? इंपोर्ट ड्यूटी इसमें काफी कम रहती है, 7% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना। और इसी वजह से जो होता है कि लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद नहीं करते, सोचते हैं इससे सस्ते में तो बाहर से आ जाएगा। तो इसलिए लोग इंपोर्ट के लिए ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। फर्स्ट चॉइस लोगों की ये रहती है इंपोर्ट कर लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है, 7% कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब और इंपोर्ट सारा, यहाँ जीएसटी 12% लगता है और 18% जीएसटी लगता है, और इंपोर्ट ड्यूटी 7% है। नहीं GST तो इंपोर्ट पे भी लगेगा। वो तो लगेगा, लेकिन एक एक जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है ना। उसके राइट बाद राइट आपको राइट, R&D के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद एग्जैक्टली। स्किल और उस तरह के टेक्निकल लोग चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग में आपका है ना सपोर्ट करेंगे। तो कैसे करोगे आप, है ना। ये 3 चीजें हैं। फिर सबसे बड़ा जो होता है जो स्टार्टअप के लिए या कोई मैन्युफैक्चरर के लिए, कि गवर्नमेंट जो आपको लोन भी देती है ना, वो इतने हाई उसमें देती है, क्या बोलते हैं परसेंटेज में, जो जो ब्याज उसके ऊपर लगाती है बहुत ज्यादा लगाती है। तो उस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोग करना नहीं चाहते, है ना। तो अभी उस सब चीजों को गवर्नमेंट कर रही है, देखिए कितना होता है कितना नहीं होता है। पर मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है। और क्या है, लॉजिस्टिक का कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको पता ही है कितनी, है ना, वो है। और मेन जो होता है ये सारी चीज़ों के बाद, सपोज करिए कि आप हिमाचल प्रदेश के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब उसके लिए रॉ मटेरियल लाना, मतलब समझ रहे हैं कहाँ से लाना पड़ेगा, आपको बहुत दूर से लाना पड़ेगा। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का इतना प्रॉब्लम। फिर उसके बाद R&D के लिए साइंटिस्ट आप कैसे लाओगे, उस एरिया में कौन जाके काम करेगा। फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो भी वहाँ डेवलप करोगे, जैसे भी करोगे, मान लो जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनी है जो सिक्किम में है, बद्दी में है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह है। तो वहाँ पे जब 20 कंपनियां होती हैं तभी 21वीं कंपनी डेवलप हो पाती है।
अगर एक कंपनी होती तो 20 कंपनी तक नहीं पहुंच पाती कभी, ये होता है। These are the challenges. Okay. So एक चीज बताइए, सॉरी सर, यस प्लीज कंटिन्यू. The maximum import is from China or some other country also? नहीं नहीं, चाइना से तो मुश्किल से 7 से 8% का इम्पोर्ट होता है। चाइना से बाकी जो इम्पोर्ट होता है मैक्सिमम वो होता है प्लास्टिक मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मेडिकल डिवाइसेस चाइनीज इंडिया में नहीं चलते, ना ही कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल विश्वास करता है। ओके ओके हाँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रायल करने के लिए आप सपोज करिए कि मैं बीमार हुआ और मुझे स्टंट लगने वाला है और मुझे कोई बोले चाइनीज कंपनी का स्टंट है लगवा लो, तो आप समझ सकते हैं कि एक तो हार्ट अटैक हुआ है मुझे और ऊपर से बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि चाइनीज स्टंट लगा लो, तो आपको राइट विश्वास नहीं होगा, है ना। लेकिन वही अगर राइट यूएस की कंपनी है जैसे मेट्रॉनिक तो है ना, उसका आप बिल्कुल प्रेफर करोगे ये चीज। जी ओके ओके पॉइंट तो टेकन yeah, Vipin ji, actually we are running time and we had to wrap it out at 4 जी o'clock. We got बिल्कुल 15 minutes. So basically, you listed it out several challenges of in doing manufacturing as such. Of जी course, especially at a smaller level, बिल्कुल बिल्कुल because you had to take care of several departments from raw material, logistic, R&D. जी So जी जी on the same line, if we would like to understand what are the challenges in trading business as such. You said that it's easy to import and then sell it in the Indian market, but we would like to hear जी from your side what are the challenges in the trading business as such in medical sector. देखिए ट्रेडिंग के लिए तो मैं बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा करीब 10 साल से ऊपर का, तो ट्रेडिंग में कोई चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस इसलिए नहीं है, उसका मैं कारण बताता हूँ। जितने भी सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेज हैं इनकी एक्सपायरी 5 साल या उससे ऊपर होती है ना, तो 5 ईयर तक तो प्रोडक्ट एक्सपायर होगा नहीं। दूसरी चीजें, ये लो वेट डिवाइसेज होते हैं, मतलब इसमें कोई वजन नहीं होता, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम जाती है। आपको डोमेस्टिक एरिया में करना हो, दिल्ली से मंगाना हो, मुंबई से मंगाना हो, थ्रू कोरियर भी आप मंगा सकते हैं, बहुत ईजी होता है, सस्ता पड़ता है। तीसरा चीज, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, जो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको 1.5 लाख रुपए कन्वर्ट करके देगा, है ना, इतना तो मैं एश्योर हूँ इसके लिए। ठीक है। फिर चौथी चीज होती है कि जब ये बहुत छोटी डिवाइसेस होती हैं तो ये बहुत बल्कि साइज में नहीं होती कि आपका पूरा गोदाम या घर भर जाए, है, या कोई बहुत बड़ी दुकान या आपको शोरूम लेने की जरूरत है। तो इसको आपको स्टोरेज और जो आपको इस रखने की जगह है वो भी बहुत कम चाहिए होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सनलाइट या किसी तरह जो एनवायरमेंटल हैजार्ड होता है, इस पे रिस्क नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस बेसिकली सिर्फ 5 मटेरियल से बनते हैं। एक पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं, दूसरा टेफ्लॉन मटेरियल से बनते हैं, तीसरा पॉलीयूरेथेन मटेरियल से बनता है, और चौथा सिलिकॉन मटेरियल बनता है। अभी कार्बोथेन मटेरियल इंडिया में अप्रूव हुआ नहीं है, हालांकि आने वाले टाइम में कार्बोथेन मटेरियल भी हो जाएगा। और ये सारे जो 4 डिवाइस जो मटेरियल मैंने बताए हैं, ये चारों के चारों मटेरियल इंडिया में मतलब मिलते तो नहीं है, ये भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, मटेरियल इंडिया में है ही नहीं, तो वो बाहर से ही आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है, हाँ एक चीज और मैं थोड़ा जी जल्दी जी जल्दी पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जी कि जी कुछ ऐसा भी रहता है कि आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड आइदर यू इंपोर्ट एंड देन ट्रेड इन इंडिया, एक ये हुआ। सेकंड है कि यू कैन आल्सो बाय इट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड देन सेल इट टू मे बी अदर सिटीज एंड हाँ, जैसे मैन्युफैक्चरर से आप लेकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट एरिया में, ओके। है ना। एंड इसमें क्या ये भी होता है कि इफ आई कैन import it in a say knockdown condition, I assemble it and then थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके बेचने का बिल्कुल भी बिल्कुल, रहता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, रहता है। जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक डायलिसिस कैथेटर किट है ना, जो डायलिसिस कैथेटर किट होती है, वो किसी की अगर एक्यूट रीनल फेलियर है, एक्यूट रीनल फेलियर मीन्स अचानक से किसी का किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, तो उसकी पूरी बॉडी में टॉक्सिन जो है वो कलेक्ट होने लगते हैं। अब वो ब्लड के अंदर से प्यूरिफाई करना है, तो तुरंत पेशेंट को लेके जाना पड़ेगा एक हॉस्पिटल में जहाँ डायलिसिस मशीन है। अब उसको पेशेंट को तुरंत एक डायलिसिस कैथेटर लगाएंगे, तो कैथेटर लगाने के लिए 5-6 चीजें रहती हैं उस किट के अंदर। एक 2 डायलेटर रहते हैं, एक 3M का टैगाडर्म होता है फिक्सेशन डिवाइस, एक डबल ल्यूमेन कैथेटर होता है।
अब सपोज करिए जो निडिल है, जो इंट्रोड्यूसर निडिल है, यहाँ पे जो इंडिया में कंपनीज क्या करती हैं, जापान से इंपोर्ट करती हैं, क्योंकि जापान की निडिल जो होती है उसकी शार्पनेस और वीवल कटिंग वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, है ना। और जो कैथेटर है वो लोग हमेशा जर्मनी या पेरिस या फ्रांस से लेते हैं, क्योंकि कैथेटर के वो लोग मास्टर हैं, है ना, डबल ल्यूमेन ट्रिपल ल्यूमेन के। फिर उसके बाद डायलेटर और ये सब इंडिया में ही बन जाता है, और वो गाइड वायर हमेशा वो लोग यूएस से इम्पोर्ट करते हैं। तो अब देखिए, आप एक एक किट बनाने के लिए 5 से 6 कंट्री से वो लोग रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करके इंडिया में असेंबल कर लेते हैं। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और आप अपने अकॉर्डिंग उसके प्राइस सेट कर सकते हैं कि इंडिया में क्या प्राइस में आपको सेल आउट करना है। ठीक है। सो विपिन जी, नाउ द लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से ये है जी जी। कि इट डज साउंड ए क्वाइट promising business. आपने बताया कि even if you are not from the medical field, but still you can carry out this business. बिल्कुल And बिल्कुल। you know, you simplified it that you know, trading is quite simple, and there are two, three aspects of it. That, you know, one, you can import and also do some value addition बिल्कुल and then sell it, or you can buy it from the domestic market and sell it. Okay, बिल्कुल। so now I think we would like to understand that what are the, I mean, of course, you know, it sounds quite simple, but is it required for me to start that, you know, I get some uh, support of, you know, somebody who is there? Okay, because still lot of questions could be there, that वो कहाँ से import करें, which are the market, कौन सा best है, कौन सा यहाँ चलता है. There are lot of information that I need to gather before I can start the business. So वो जी कैसे करें? I mean, what are the best way to do that? किसी कंसल्टेंट के जी पास जी जाएं, जी, कोई कंपनी के पास मैं जाएं, समझ गया। और how to you know, gather those informations? देखिए सर, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग ने ये जो जो हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं करीब इतने समय से, तो हमारा गोल ही वही है कि हम जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां लाइसेंसिंग की जानकारी हो, जहां डॉक्यूमेंटेशन या कंपनी फॉर्मेशन बनाने का जो तरीका हो वो हो, और तीसरा बिजनेस डेवलपमेंट हो। ये 3 सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं। और इंडिया.com जो है, जो ये कंपनी है, जो हमारे नवीन सर हैं, यूएस में हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं कि लोग इसमें जुड़ें, कनेक्ट हो सकें, और हम उनको ये जानकारी दे सकें। तो बेसिकली हम ये तीनों सेगमेंट के लिए लोगों का सपोर्ट करते हैं, और लोगों का बिजनेस 0 से समझ लीजिए 100 तक पहुंचाने का पूरा काम करते हैं इंडिया में। Okay. So I agree that uh, I mean, on a general basis, any business, if anybody want to start, you know, there are जी nitty-gritties and you know, the information. So whosoever, if a proper R&D is done already, then it really helps in you know, starting a business and also accelerating it to a you know, level राइट and राइट। getting the success. And it's important that yeah, and thank you for this. You are we are doing this sort of discussions and webinars to spread out and थैंक to, यू। you know, make the things easy. जी जी, And थैंक यू सर। अभी so आपको कोई area रहता है, you would like to conclude this quickly, and then I think we have I would like to mention uh, Supriyo Mandal. He is with us, and जी he is a student of BE, Electronics and Instrumentation, ओके। and he's doing जी diploma जी। in pharmacy. And he said that he want to do, you know, he want to make a career in medical instrument and device company. So since he's a student, would you like to say something to him? यस, मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का उनका पढ़ाई हो चुका है और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की वो कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एक रिटेल, रिटेल मीन्स अच्छा, होलसेल होता है, एक एक रिटेल मिनट होता है, बीच में टोकना उनको चाहता हूँ। जी सुप्रियो का और जी एक पर्टिकुलर सा क्वेश्चन है, जी स्पेसिफिक क्वेश्चन है. ही इज आस्किंग, दो इट्स जी general basis, why there are very few startups in medical device industry, how much minimum capital needed for manufacturing, or category wise discuss. So basically you know, this is very general question, and it जी comes to mind of
न्यू पीपल particularly when they start that इतने कम लोग क्यों करते हैं यार, and what are the minimum, जैसे वैसे तो I think you have answered it that one can start with 1 lakh rupees as well, but Yes. you please show some light on this. देखिए सर, मेन क्या होता है, जैसे कि अब जब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, जैसे एफएमसीजी सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक का है, मोबाइल इंडस्ट्री का है, इसमें डायरेक्ट कंपनी ने, मतलब गवर्नमेंट ने इंडिया में अलग से इसकी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। लेकिन मेडिकल डिवाइसेस के लिए इतना फोकस नहीं रहा कभी से, क्योंकि जब यहाँ शुरू से ही इम्पोर्ट रहा है, जब से मतलब 1991 से, जब से अपने यहाँ ये ग्लोबलाइजेशन और ये लिबरल हुआ है, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि इतनी इजी फैसिलिटी हो गई कि लोगों ने फील ही नहीं किया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। फिर दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कोई इसके लिए थोड़ा सा साहस करता है कि नहीं मुझे करना है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ड्रग लाइसेंसिंग के लिए उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं दिल्ली में और सब जगह, जो इनके ऑफिसेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो बहुत लंबा है। आप समझिए करीब बंच ऑफ डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से आपको जो एनओसीज लेनी पड़ती हैं, नगर निगम, नगर पालिका, यहाँ वहाँ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा टफ हो जाता है। इतना टफ हो जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट बनाने में ही 6 महीने लग जाएंगे। तो आप फिर उसके बाद आप, चलिए सब कर लिया, अब टेक्निकल जो जो मैन पावर है वो आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि इंडिया में जब कोई बनाता ही नहीं, तो सीधी बात, किसी को पता नहीं है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। जैसे आप सपोज करिए मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में एक मोल्डिंग मशीन होती है ना। मोल्डिंग मशीन मतलब किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को एक शेप देना होता है। अब वो शेप देने का जो टेक्निक है यहाँ पे इंडिया में बहुत कम लोगों को आता है, तो ये प्रॉब्लम जाती है मैन पावर की। फिर अगर आप चलिए मैन पावर सब कुछ कर भी लें, तो आप जो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करोगे वो कहाँ से करोगे? वो अल्टीमेटली फिर आपको इम्पोर्ट करना है इंडिया में। वो भी So प्रॉब्लम एक जाती है। I think हाँ, विपिन जी ने जो भी challenges बताए हैं in manufacturing, and he has also तो said इसलिए said that probably that is the reason trading and import is more easy, इजी वे, because, दैट इज द इजी वे। but then I would also say that whatever challenges you are saying, if anybody who is having bit dare and bit capital, so I think the challenges would are यस also like opportunity. जैसे कि वो molding यदि इंडिया में नहीं है, if anybody would like to do, I think this is more lucrative business already in, here medical devices में, and then rest other things are like numbers, and वो तो already काफ़ी promising है इंडिया में, जितना population है और उस लिहाज से market है. So I think anything is left, or we can. मैं बस एक पॉइंट में और बोलना चाहूंगा सर, है ना, जाते जाते। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो क्लास ए और क्लास बी के डिवाइसेस हैं, है ना, उसकी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपने जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया आपने, और आप उसके थ्रू दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके थ्रू आप अपने ब्रांड को उस चीज़ को बनवा के, तो आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, वो सब मैंने बताया ना, तो वो चीज़ों से आप उसको बाईपास कर जाते हैं। बाईपास इन द सेंस आपकी कंपनी भी हो जाती है, आपका ब्रांड भी हो जाता है, आपका उस प्रोडक्ट भी आ जाता है। लेकिन ये जो बाकी के जो मोल्डिंग वाला पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब खत्म हो जाता है, उसको आप निकाल देते, मतलब वो आपके उतना बड़ा हर्डल नहीं रह जाता। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप क्लास ए और क्लास बी, क्योंकि ये दो डिवाइसेस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इंडिया में, किसी भी मैन्युफैक्चरर को बोल के अपने नाम से, है ना, प्रोडक्ट बनवा सकते हैं और उसको अपने ना इंडिया में मार्केट कर सकते हैं, जो Okay, कि so मोस्ट ऑफ द लोग जो स्टार्टअप होते हैं यही करते हैं, है ना जी। so ये ठीक है, and sir, I think we have reached at it's 4 o'clock already. So I think it's an 360 view that, जी and practical view. We have not talked anything academics or theoretical. It's all practical experience that Vipin ji has shared जी related to this business. I think for most of the people, it's going to be very good business. And there are several sectors. आप मेडिकल फील्ड से हैं नहीं हैं, फिर भी आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. आई मीन सेवरल एरियाज आर देयर जो जहाँ पे किया जा सकता है. कुछ चीज़ें विनय जी ने बोली कि गवर्नमेंट का शायद बहुत
emphasis और support नहीं है, लेकिन from a general perspective I would say that if you structure your business in a proper way Yes. and you start it, you got some customers, थोड़े से numbers move कर रहे हैं, तो जो फाइनेंसिंग का सिनारियो है इंडिया में वो इतना बुरा नहीं है आज के डेट में. द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, they are quite ready to fund a business which is growing, और particularly उनको वहाँ पे समस्या नहीं होगी. Second thing is that जो स्टार्टअप सेगमेंट है, जो वहाँ पे जो फाइनेंसिंग हो रहा है, we can see that people are getting finance from their local relatives. Angel investors are there. There are also a lot of venues like बाहर के professional investors भी invest करते हैं, and those businesses can grow. So it can also be started in a very traditional way. It can also be started in a bit innovative manner, जहाँ पे आप कुछ अपना वैल्यूडेशन भी करते हो. एज आपने बोला कि you got your brand and then you can get it manufactured from some already existing manufacturer, and then you can sell it in the market. तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज है जो अवेलेबल है. आई थिंक आई थैंक यू विपिन जी. बिफोर वी Thank you, conclude, sir. we would like to hear some concluding words from Naveen sir, who is here with us, who has credit to do Thank you, this sir. one. Thank you. That's wonderful. I'm very delighted. I mean, I am not into this medical devices at all, but I learned a lot today. Again, every time I talk to you, Thank you, sir. I learn Thank you. a lot. I request everyone, whosoever has any questions for us, send us an email at info@entindia.com. Or if you want any question, if you have any question for Vipin sir, feel free to send us an email, and we will Yes. have Mr. Vipin give you full assistance and full support. Thank you, sir. And I also request if there are companies who are looking for partners not only in India but also across the world, I invite you to log into our portal entryindia.com. I'm going to mention it in the chat box also. And if you have any feedback, any thoughts, or if you want this discussion to go further deep down, let's say आप चाहते हो particular focus के ऊपर, जैसे आज disposables पे बात की विपिन जी ने, और अगर हम और चीज़ों पे बात करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर दीजिए. So we will look into the various topics and bring those topics elaborated upon by Vipinji and more experts that we have in our network. So I think with this I conclude this webinar. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you Vipin. Thank you Shashi. And thank you Thank you, everyone sir. for Thank you. listening to it. And hopefully we will connect in next few weeks and with more details. All right. Okay. Well, thank you very much. Thank you, sir.